ladies and gentlemen, and distinguished guests. A warm virtual welcome to all of you to today's highly anticipated webinar, Empowered and Resilient, Unveiling the Reality of Women's Independence in India on 77th Independence Day, organized by India Greens Party Women's Network. The seeds of India Greens Party were sown on 2nd of July 2017 in its small meeting in New Delhi, in which 44 people from 17 states took part and agreed that there was an urgent need for a national Green Party in India in the era of globalization, liberalization, marketization, and climate change. The main principles which the party follows are ecological wisdom, social justice, participatory democracy, non-violence, sustainability, respect for diversity. The India Greens Party Women's Network, iGPWN, was formed on 4th November 2019 after National Convention and 2 days gender equity workshop to support the participation of Green women nationwide in democratic political processes. This webinar isn't just a reflection of progress. It's a call to action. It's a reminder that while we honor our nation's independence, we must continue to champion the cause of women's independence and autonomy. Happy 77th Independence Day to all. And may our collective efforts drive us closer to a more empowered and resilient India for all. Our lineup of esteemed speakers, each a pioneer in their respective fields, will share their invaluable insights during the webinar. Thank you to the speakers who took time out of their busy schedule and agreed to be part of this webinar on such short notice. Thank you to all the attendees for being part of this webinar, and let's make this an enriching experience for us all. I'll share the screen. I start with my introduction. I am Madhubanti Sen. I live in Hyderabad, and I am convener of India Greens Party Women's Network and member of Parliamentary Board. I request our executives from India Greens Party Women's Network to introduce themselves. Sarika, please go ahead. Yeah, hi, I'm Sarika Dabra, and I'm from Mumbai, and I'm the deputy convener of the iGPWN. Thank you. Harpreet. Hello. Ji Harpreet. Thank you so much, Madhu. Harpreet Kaur, co-president India Greens Party and PSC member. I'm from Punjab. Thank you so much. Vinita. I'm Vinita Menon. I'm the convener for the Grievances and Redressal Committee, as well as on the Public Health Committee. And I am a member of the PAC. Thank you. Rehana. Do we have Rehana on call? रेहाना जी नहीं है. लिली जी, क्या आप कॉल में हो? नहीं, वो भी नहीं है. Okay. So Rehana Siddiqui and Lily Shantaminj are also executives of India Greens Party Women's Network. For certain reasons, they might not have been able to join. But we would like to go ahead with the program, and I request all to write their short intro on chat box for everyone to know each other. Without further ado, I welcome our first speaker, Advocate Ms. Nilofer Masood. She is a social and political activist and is the Vice President of Bar Association, Baramulla, Jammu and Kashmir.
She's a member of District Sexual Harassment Committee and chairperson, JK Hindustan Scouts and Guide. The floor is yours, Nilofarji, for the next 10 minutes. I'll give you a reminder after 7 minutes. Thank you. She is in mute, I think. Nilofarji, आप mute पे हो. I feel good afternoon to all of you. I really feel privileged that I am the part of today's webinar, and it's an honor for me to be the part of this system where you speak about the women's right, where you speak about the women's progress after the post-independence. Happy independence to everybody. To all the women's of Women Green Party, I would like to share a few things with you. After post-independence, I think the status of the women has in fact changed, because for the reason the struggle which has been carried by females along with the male, they have tried their best to do something for the female. And in fact, if you see constitutionally, there are so many rights which have been provided. I'll be mixing the language. There are so many rights which have been in fact provided to the women. After post independence, we have seen amendments in Hindu Marriage Act 1955, which actually classifies the Hindu marriage, determines the age of marriage, provides some this monography, and then gives guardianship of the mother, permits dissolution of the marriage under the certain circumstances. Besides this, we have seen other laws also vis-a-vis the succession, like we have Hindu Succession Act of 1956, which in fact makes there are so many provisions which speaks about the equal rights of the daughters in the property, and now a Hindu female can have the equal right vis-a-vis the son. If the son is going to get the 50%, and if there is only one daughter, she too can get the 50%. Besides this, there has been change after 1947. We have seen Hindu Adoption and Maintenance Act. So you all might be knowing, but I'm speaking about the progress what we have attained after independence. In fact, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, it speaks about the rights of a Hindu woman to adopt a son as a or daughter. Plus, it also provides the maintenance to the females also. And then we have seen a long struggle where we have been talking about the guardianship of a mother. In fact, there has been Hindu Minority and Guardianship Act 1956, which speaks about that. Then if we see the position of a woman today, I think it's much better, much better what we used to see pre-1947. There is Sati Prohibition Act also. We have seen widow remarriage being legalized today. In fact, widow can adopt the son or the daughter. In fact, we have also seen that Indian women are free to choose any form of education or the profession today. Though in Constitution, we have seen special acts which are in general in nature, like Article 14, we speak about the right to equality, right to live with dignity, like Article 21, and then to choose your profession, Article 19. But not only the fundamental rights have been there have been some directive principles also. We speak about some very special things which are being directive in nature, but it has been held by in so many authorities, where Honorable Supreme Court has laid down that the right to education of a female, it flows from the Article 21. Then we have seen right to equality. It should be it should not be felt that it is only a fundamental right only for the males only, but for the females also. So our constitution is such a vast that part 3 speaks about the fundamental rights, part 4 speaks about the directive principle. We have seen there are there is prohibition of dowry act also, but despite that, much is needed to be done still. What I feel that being a female, I have observed that we speak about harassment, but on the ground, I feel that it is still there. Whether you are in any educational sector, whether you are in any department, still you can feel harassment. But that may not be of that type which is in the journal where you can generalize those things. But you feel that there is still
it is existing in our society, and it is male dominated society, where the male in fact try to dominate the females. But females, alhamdulillah, they have tried to do their best in each and every field. If you feel that whether it is educational sector, whether it is health sector, be it any sector, the women are proving themselves that they are the best whenever the platform is given to them. Still, I feel much is to be done, because on political side we are very weak. In fact, we say that we had started the struggle in the 1995, when the whole year was dedicated for the female politically, that she could be made very strong. And in fact, we celebrated the year from 1975 to 85, a decade was celebrated for the females. And we have seen that on 8th March, we are celebrating International Women's Day. But even then, much is to be done. For example, there should be the role of the female in political matters. The seat should be reserved for her in the legislative assembly, not only in the legislative assembly, but down we go. Like there is some 33% reservation for the females in local elections, like municipal elections. So I think the bill which was there, it ought to be passed as soon as possible, so that we too can feel that women can participate in the political field, where she can sit with the people, where she can participate in the decision making. Number second, I feel that there is still dearth of the females in planning matters, because I think not like unlike male, a female is the best planner. If she can plan a house beautifully, you give her something, she will make it beautiful in such a way that one gets puzzled how she has got that talent. I think in planning, her decision making is very important. She should be involved in that. Plus, there should be still something is to be done on the ground, where a female should feel independent, that she has a right to decide the things, she has a right to choose her profession. There should be no compulsion. She has a right to select her partner where she wants to enter into the marriage. So I think all these things are to be seen by the government of India also, because for the reason there are so many policies, there are so many laws, there are so many legislations, which in fact are not being implemented at the ground level. I still feel that I may be a successful lawyer, I may be doing so many things, but still there is some difference where you feel much more is to be done. So if these webinars are being off and on done, I think we can clear the points, we can put the things before this forum, wherein we can speak about the female rights. As an individual, I'm trying to speak about the women who are facing the domestic violence. It does not recognize a particular female vis-a-vis a particular religion. It is a general law where Muslim females are coming on the forefront today, even if the harassment which she was feeling vis-a-vis the talaq, now she's feeling that the law has changed in her favor, and now she's feeling that she can get the maintenance. She will not be kicked out of the house, because the law of domestic. नीलोफर जी, Yes. sorry to interrupt. आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पार्टिसिपेंट्स भी है, अगर आप हिंदी में भी थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। देखिए, मुझे लगता है पोस्ट 1947 के बाद बहुत कुछ बदल गया है, जिसमें आज एक औरतें, चाहे वो मुस्लिम औरतें हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखती हैं, तो आज उसको डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट या मेंटेनेंस जो 125 में वो हासिल करती है, 125 सीआरपीसी, उसमें वो हासिल करती है। बहुत कुछ एक फीमेल के लिए है। अगर एक फीमेल अपने राइट्स के लिए आगे नहीं आ सकती है, वी हैव स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारे पास होते हैं, या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसके थ्रू वो फीमेल आ सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, चाहे वो फैमिली का डिस्प्यूट हो, चाहे वो किसी भी राइट का डिस्प्यूट हो, जहां उसको लगता है हर राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, शी कैन कम बिफोर दैट फोरम। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो उस फोरम पे आ सकती है, वहाँ पैनल ऑफ लॉयर्स है जो उसके राइट्स के लिए लड़ेंगे। काफी चेंज आ गई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केस आया, उसमें एक फीमेल जो थी, कुछ करके उसके घर वालों ने प्रेशराइज करके उसका डिवोर्स कर दिया। जो मेल था, ही वाज नॉट नोइंग कि जो ये औरत है शी इज प्रेग्नेंट। आप खुद सोच लीजिए, प्रेग्नेंट थी आफ्टर सम
3-4 months उसने बच्चे को जन्म दे दिया. नाउ शी इज ऑलरेडी डिवोर्स्ड. हस्बैंड उसको मानता नहीं था, कहता था आपका डिवोर्स हो गया, आई विल नॉट गिव नेम, मैं उसको बच्चे को नाम नहीं दे दूंगा. 3-4-5 साल तक उसके दादे का नाम चलता रहा. फाइनली शी केम टू मी, कुछ सर्टिफिकेट बनानी थी. आई टोल्ड हर इट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड टू गेट द नेम ऑफ एक्चुअल फादर incorporated in the certificate. It's very important. This is your fight and you need to take it. आप आगे आ जाइए, we'll help you out. And it was very nice to see, वो औरत जब आगे आई, उसने दरवाजा खटखटाया कोर्ट का, तब जाकर उसके बच्चे को उसके बाप का नाम दिया. तो ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं जहां पर फीमेल को एक आवाज उठाने की जरूरत है. मैंने पॉश एरियाज के बहुत ही अच्छी फीमेल्स जो वेल एजुकेटेड है, जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं, अगर उनके साथ कहीं हैरेसमेंट भी हो रही है आज की डेट में, तो वो फोर फ्रंट पर नहीं आती है. उनको लगता है कि शायद समाज में अब हमारी ऐसी पोजीशन है तो जहां हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए. हालांकि वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार भी हैं. जैसे कि आपने अभी इंट्रो में कहा कि मैं एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस जो फीमेल्स बर्दाश्त कर रही हैं, मैं उसकी भी एक मेंबर हूँ. उसमें आई हैव बीन द मेंबर फ्रॉम लास्ट 3 years एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. इन 3 सालों में वी हैव रिसीव्ड ओनली 2 कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरी गुड ऑफिसर्स जो वेल सेटल है. तो ऐसा नहीं है कि वो हैरेसमेंट कहीं खत्म हो गई है. वी टू आर फेसिंग हैरेसमेंट, लेकिन अपना दायरा जो है हमारा कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है. पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकली अब काफी फीमेल्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप कितने ही एमपी हमारे हैं, कितने भी आज एमएलए हमारी फीमेल्स हैं, तो काफी डर है वहां पर भी. जब तक एक फीमेल को आप पॉलिटिकली भी स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, मुझे लगता है उसका रोल डिसीजन मेकिंग में विजा विज फीमेल राइट्स को लेकर, विजा विज फीमेल के हक को लेकर, जब तक आप उसको उसकी पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो राइट्स, वो चाहे वो फंडामेंटल नेचर के हैं, चाहे वो डायरेक्टिव नेचर के हैं, वो डाउन द लाइन उस एक फीमेल के लिए नहीं इस्तेमाल भी नहीं होते और ना ही वो राइट्स उस तक पहुंचते हैं. और अभी भी आई एम विजिटिंग सो मेनी एरियाज, जैसे रूरल एरियाज हैं, यू कैन सी देयर इज स्टिल एक्सप्लॉइटेशन. अभी भी उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है. अभी भी उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े, सामने आ जाए. तो हम पर जैसे कि आपने ये ग्रीन पॉलिटिकल, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं आज इसका पार्ट हूँ. मेरा आज इंट्रोडक्शन काफी अच्छे अच्छे लोगों से हो रहा है, अच्छी फीमेल से हो रहा है, वो इंटेंट टू स्पीक अबाउट. तो वो अवेयरनेस फैक्टर जो है वो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं रूरल एरिया में दैट इज मिसिंग. जब तक वो चीजें नहीं हो जाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वसी है, बहुत ही ज्यादा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द थिंग इज हु विल बेल द कैट. किसी न किसी को तैयार होना है, आवाज उठानी है. जो पोजीशन हमारी इंडिपेंडेंस से पहले थी, ये आज इतनी अच्छी हो गई कि दैट वी आर एबल टू स्पीक टुडे थ्रू वेबिनार. हम बात कर रहे हैं अपने राइट्स को लेकर, तो ये एक प्रोग्रेस है. मैं एक लॉयर हूँ, ये एक प्रोग्रेस है. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है. दिस इज द प्रोग्रेस व्हाट वी हैव अटेंड इन आवर आफ्टर इंडिपेंडेंस. Yes, तो yes. ऐसा भी नहीं है कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक. इफ वी आर टुडे 10, मे बी टुमारो इस प्लेटफॉर्म पर और 10 जुड़ जाएंगी. तो हिम्मत हमें नहीं हारनी है. बहुत कुछ हमने हासिल किया है, बहुत कुछ अभी और हासिल करना है. तो उसके लिए एक फीमेल को हमें तैयार करना है. अगर एक फीमेल एक घर चला सकती है जिसमें मुख्तलिफ मिजाजों के लोग होते हैं, हर एक शख्स जो घर में होता है डिफरेंट एटीट्यूड का होता है, डिफरेंट पसंद नापसंद उसकी होती है. जब वो एक घर को चला सकती है, मुझे लगता है इस देश को भी चला सकती है, क्योंकि इस देश में जो गुंचा है हर एक रिलीजन का, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी रिलीजन का है, बौद्ध, किसी भी रिलीजन का है. तो औरतों ने प्रूव भी किया, अगर वो एमएलए रही है तो बेस्ट एमएलए रही है, अगर वो लेजिस्लेटर रही है तो बेस्ट लेजिस्लेटर्स रही हैं, अगर वो एमपी रही है तो बेस्ट एमपीज रही हैं. तो इसी तरीके से हमें हिम्मत नहीं हारनी है. तो हमें आगे बढ़ना है. इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा व्हेन वी विल बी हैविंग इन रियल सेल्स जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, तो हम सब के लिए एक जैसा होगा. we don't in fact need to celebrate जो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को हर साल. मुझे नहीं लगता है फिर शायद उस दिन के मनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक दिन जो एक फीमेल के लिए होता है, दिस इज व्हाट आई फील, वो उसके लिए चैलेंज होता है. घर भी संभालना, फिर घर से बाहर भी, क्योंकि एक वो नोशन ही बन गया
चाहे वो वर्किंग है चाहे वो वर्किंग नहीं है, उसको घर संभालना है, तो नीलोफर घर भी जी, संभालती है। आपको इंटरप्ट करना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं और दो स्पीकर्स, और आपको बिल्कुल सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा, तो वहाँ पे हम और sure. डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, और एंड I'm थैंक यू फॉर thankful. I'm स्टार्टिंग thankful. Highly honored. this webinar Highly on such honored. a positive note. While it's important to never forget the struggles women face, but also appreciate how far we have come across. And Yes, before that's moving true. to the next speaker, I would like to play a short video on some of the women freedom fighters whose mention is lost in the pages of बिल्कुल। history. But before doing that, I would मैं request करूंगी सभी को attendees and speakers to switch on their cameras ताकि हम एक फोटो ले सकें. Can everyone please turn on their cameras? It's lovely to see so many of you join us. Suresh ji, Rajendra ji, Prabhat ji, Adil, Rehana ji. Okay. Thank you. Thank you so much. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. And you honor the जरा इसको इधर भेजो। उजैफ को मैंने बोला ना नजर आ तो हमें उसको इधर भेजो।
I welcome our second speaker of the webinar, Ms. Sujata Madhok. Sujata Madhok is a Delhi-based journalist who has worked for several media groups, including the Hindustan Times and the Times of India Group, the Statesman, Democratic World, and the Women's Feature Service. An active journalist, she has been associated with the women's movement and NGOs working for people's rights. She is currently the president of the Delhi Union of Journalists. The floor is yours, Sujata ji, for the next 10 minutes. I'll give you a reminder after 7 minutes. सुजाता जी आप शायद म्यूट पे हो. Yeah, can you see me now? Can you hear me? Yes, yes. Okay, fine, good. I'm happy to be here with all of you. The idea of a Greens party is welcome in this country because हमें पता है क्या हालत है इस देश की और इस देश के पर्यावरण की. तो अच्छा लग रहा है कि इस पार्टी में औरतें भी दिख रही हैं इतनी सारी. Kaveen, and more power to you. I hope that you grow in numbers and progress. अभी तो शुरुआत ही है. मुझे कहा गया था मीडिया पर बात करने के लिए, तो मैं जनरलिटीज में नहीं जाऊंगी, बहुत स्पेसिफिकली जो हमारी मीडिया लैंडस्केप है उसके ऊपर बात करूंगी. आपका टॉपिक था इंडियन वुमेन एम्पावर्ड एंड रेजिलिएंट, पर साथ में आपने ये भी लिखा अनवेलिंग द रियलिटी. तो दोनों चीजें हमारे सामने आ सकती हैं. क्या औरतें मीडिया के प्रोफेशन में एम्पावर्ड हैं? तो मैं कहूंगी कुछ हद तक हाँ. क्या रेजिलिएंट है? वो भी कुछ हद तक रेजिलिएंट है, पर चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों हैं. मैंने मीडिया को देखा है पिछले 50 साल में पनपता हुआ, बढ़ता हुआ, बहुत चेंज देखा है, और उसमें औरतों की छवि जो है वो बदलती देखी है कई तरह से. जब मैंने ज्वाइन किया था एक अखबार दिल्ली में, IIMC से, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन से पढ़ के, जर्नलिज्म पढ़ के ज्वाइन किया था एक अखबार. छोटा, पहले बहुत छोटी सी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वीकली थी, उसके बाद एक अखबार को ज्वाइन किया था. तो उस समय बहुत अलग स्थिति थी. जैसे स्टेट्समैन तब बड़ा अखबार होता था, पर औरतें 2, 3, 4 ऐसे गिनी चुनी होती थी. 2 रिपोर्टर थी, एक मैं डेस्क पर थी, और पूरी बिल्डिंग में 2 रिसेप्शनिस्ट थी, 2 सेक्रेटरी थी, 1 रिसेप्शनिस्ट थी. तो यू कैन इमेजिन दैट वी इवन हैड अ सेपरेट टॉयलेट फॉर women. तो
we were very clearly a minority and a very, small minority. और ये हर अखबार में चित्र था, थोड़े कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़े कम औरतें थीं। और कई फर्क ये भी था कि जैसे अंग्रेजी में अगर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो तो उनके अंग्रेजी सेक्शन में ज्यादा औरतें होंगी, हिंदी में बहुत कम। तो ये कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स भी थी, सोचने का नजरिया एडिटर्स का भी था। पर धीरे धीरे उस समय से औरतें इस प्रोफेशन में बढ़ती गई हैं। अच्छा, कुछ श्रेय इसका मैं वुमेन्स मूवमेंट को जरूर दूंगी, क्योंकि वो जब UN डेकेड फॉर वुमेन हुआ था 75 में, पहला एक साल UN वुमेन का दिया गया था, तो उस समय बहुत फर्क पड़ा था, मतलब इस पे चर्चा होनी शुरू हुई थी। एंड ग्रेजुअली पोस्ट इमरजेंसी there was a flourishing of democratic movements in this country, or that included the women's movement. So the women's movement gave many of us the strength to carry on and the persistence to carry on in what were adverse circumstances, difficult circumstances in the media world. Because obviously we were a minority and we had to make our way, prove our skills, prove our abilities, and so on. So from there, what you see now is very different, at least, yeah, I think in media across the country, but especially in the metro cities. अब मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, कोई भी अच्छी स्टडी निकले हुए इस पर कि कितनी औरतें प्रोफेशन में हैं और कौन सी संस्थाओं में है, किस तरह की संस्थाओं में है। और ये प्रोफेशन भी बढ़ता जा रहा है, बहुत मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। हेलो हाँ सुजाता जी, हाँ बोलिए। Oh gosh, I think what's happening here is some. Hello. हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, so बहुत चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस में ये है कि आई थिंक नाउ एटलीस्ट मेट्रोज में I'd say women are almost 30% of the profession. छोटे शहरों में वो स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है, उनकी भागीदारी जरूर बढ़ रही है। और खास तौर से टेलीविजन की एंट्री के बाद, और अब तो डिजिटल मीडिया है, विजुअल मीडिया है, यूट्यूब है, ये सब है, बहुत कुछ है। सो बट टेलीविजन first made use of women's faces because, and because they chose attractive young women, है ना? They chose anchors who were good looking, men also who were good looking, but women were chosen specifically because they were smart, good looking girls, young women. Even today, you will not find older people. So there's a lot of ageism in this industry. You will not find older people, especially in television, at all, at all. And you will find mostly what are called manels, not panels with women in them. When it comes to political discussions or anything else. That is also a reflection of the reality of our society. So, but at the same time, it reflects some biases on the part of the media, the mainstream media. अब अगर आप देखें आज जो नई लड़कियां जर्नलिज्म ज्वाइन कर रही हैं और उनको दिख रहा है एक ग्लैमरस प्रोफेशन है, क्योंकि उनको दिख रहे हैं ये बड़ी बड़ी एंकर्स, और ये भी खबर निकल आती है कि एंकर्स जो हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं। सो 1-1 करोड़ का कई एंकर्स का पैकेज रहता है। सो इट्स बिग मनी एंड द स्टेक्स आर वेरी हाई। आप सबको पता होगा इन औरतों के नाम, जैसे कि मेरे से ज्यादा ही आप लोग जानते होंगे। अब हिंदी में है, आज तक में अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी या श्वेता सिंह वगैरह। अंग्रेजी में भी कई हैं या थी। अब
कई चेंजेस जब आते हैं तो इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत क्लियर हो गया है इस पिछले 8-9 साल में। अब मिसाल के तौर पे, नॉट मिसाल के तौर पे बट उदाहरण के तौर पे, मारिया शकील हैं। सो मारिया शकील अभी जो है उनको एनडीटीवी में बहुत सीनियर पोजीशन पे, एडिटर की पोजीशन पे लाया गया है। तो पहले वो न्यूज़ 18 में एंकर थी, अपने एक दो शो थे इनके, शी वाज पॉपुलर। But it's very interesting that before she joined the Adani's NDTV, she was invited to speak at the RSS headquarters in Nagpur. तो वहां जाके उन्होंने उनसे बात करी, उनको एड्रेस किया और फिर ये ज्वाइन किया। तो साफ दिखता है कि किस तरह से प्रोफेशन में ये सब चेंजेस आ रहे हैं। And women are equally affected and they're equally smart in manipulating and managing to get ahead in the profession. Similarly, you have somebody like Smita Prakash, who is the editor of ANI. And although then that's a family connection, she's the daughter-in-law of the proprietor, but she's made she's established herself. Of course, she's also very controversial because ANI is controversial. So, and they often have to defend the positions of the government on a lot of things. On the other hand, you had in the over the years, जो हमने देखा था पिछले 10 साल में नहीं तो उससे पहले एनडीटीवी की जैसे एंकर्स थी या इवन एडिटर्स बनी थी, उनमें निधि राजदान was very prominent. Sonia Singh, who of course was later married, not later, but somewhere along the way married a Congress politician. Then you had Barkha Dutt, who is now independent. So Nidhi Razdan, you know the circumstances in which she was tricked into leaving NDTV. Very elaborate game that some people played with her. We don't know who, लेकिन ये हुआ था। तो एक तरफ तो ये सब एंकर्स हैं, दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया में उससे भी पहले थोड़ी बहुत औरतें एडिटर के लेवल पे पहुंची थी, पर इक्का दुक्का ही, जैसे कि मृणाल पांडे दैनिक हिंदुस्तान की एडिटर बनी थी, या एक मैथिली भुसनूर मत करके वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कुछ समय तक रेजिडेंट एडिटर शायद थी। तो ऐसे कुछ थे, औरतें थी who made their way in the mainstream newspaper business. Hi, Sujata ji. We have 1 more minute. Okay. That's Thank really you. okay. So, but what's happening now is that in the media, you have a lot of division. You have amongst women journalists also. Across the entire media, there is polarization between the liberals and the left and the right. That's affecting us greatly. And the government has also done many things that are very negative for us. For instance, the Working Journalists Act. There were 2 Working Journalists Acts to protect our wages and working conditions in the print media. Those were enacted in the 1950s. Those have been removed. They've been subsumed under some general so-called labor codes. But it essentially means a lot of our rights, our securities have gone. And also increasingly, this has become a contract profession. So when you talk of the mass of journalists and not the anchors, not the bigwigs, not the editors, there's a great deal of insecurity. There is frequent retrenchment. There are job losses. And when you lose your job, there's no guarantee that you can get anything else. This is true also of television, particularly of television, because there have never been any unions. They're not organized at all. So it's like, what shall I say? So at the medium levels, at the low levels, women still have a fairly hard time. I mean, we did a survey once. I did that on behalf of the International Federation of Journalists. And we discovered that in a lot of places,
women didn't get the right to maternity leave. So if you left, there was no guarantee that you'd come back. Your paper may not call you back. Your television outfit may not call you back. So there are multiple issues that the average woman in the profession still faces. And the only way I know to deal with that is to unionize, to get together, to, to build alliances and hope to fight back in some ways, to provide job security, because that's a huge issue now. The other issue, of course, is the trolling that's going on of a lot of women journalists. And you know some of them, you've heard the names. There are people like Rana Ayub, Neha Dikshit. Very recently, there was Tulsi Chandu, a Telugu journalist who went on Facebook and said, I'm being trolled so much that I don't know when I'll be killed. And we know that happened to Gauri Lankesh. Let's not forget that. So there are many problems that we face. And lastly, let me just say very recently, just this week, amongst the people, 5 people who have been targeted, NewsClick has been targeted. And among the 5 people, individuals who have been targeted, is a woman called Sakshi Joshi. She's a YouTuber. The other YouTubers, of course, are more familiar names like Ravish or, Abhisar Sharma, people who were already established. But Sakshi is an independent young woman who just, managed to establish herself very well on YouTube and is extremely outspoken. So I saw a poster of these 5 journalists, Paranjoy, Abhisar Sharma, Ajit Anjum, Sakshi Joshi, and one more. I'm forgetting. So a poster calling them Chini Dalal and saying they are Congress agents. They work for NewsClick. Now, Sakshi, for instance, does not work for NewsClick. She has nothing to do with it. But there's a lot of attack of this kind that's going on, and there's been trolling. Their names have been trending. I think it's time to talk about a law to protect journalists from arbitrary attacks. And I mean, PJ has done nothing about the trolling so far, although he himself, the Chief Justice of India, has been trolled extensively in recent months. So I hope finally maybe the Supreme Court will try and do something about the trolls. But there are also other things, sedition cases, defamation cases, many other things that happen to journalists. And women journalists too are in the firing line increasingly. I'll stop here. Okay. Thank you, Sujata ji. I welcome our third and final speaker of this webinar, Ms. Lalita Panwar. She is a social activist from Jodhpur, Rajasthan. She has been sincerely working on the issues catering to Dalit, Adivasis, and minority groups since last 10 years through different organizations. Lalita ji, yes, the floor is yours. आप स्टार्ट कर सकते हैं. मैं आपका प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ. जी, थैंक यू मैम. जैसा कि मैम ने बता ही दिया है, मेरा नाम ललिता है और मैं जोधपुर से हूँ. और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी जो भी बात रखूंगी, जो खुद के जो अनुभव है, जो फील्ड के अनुभव होते हैं और एक व्यक्तिगत जिंदगी में जो मेरा अनुभव रहता है, जब मैं किसी घटना को अपने आसपास में देखती हूँ तो वो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करती है. और जैसा कि टॉपिक भी ऐसा ही था कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के साथ जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और आए दिन जो घटनाएं हो रही है हमारे देश के अंदर, तो उस घटनाओं का असर किस तरीके से महिलाओं को ऊपर आ रहा है, तो उसके ऊपर मुझे बात रखनी है. मैं अपनी बात शुरुआत में ही, जैसे कि मैम ने पीपीटी जो शुरू की है, ये मैं इसलिए जो आप चित्र देख रहे होंगे इससे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी. मैंने ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है. कल मैंने अपने किसी कलीग को फोन लगाने के लिए फोन लगाया था, तो उनकी जो रिंगटोन थी तो उस पर जो गाना बज रहा था वो अमृत महोत्सव दिवस पर हर घर घर तिरंगा लहराए, उसकी सेल्फी लेके आपको अपलोड करनी है.
मैंने जब जैसे ही ये मतलब रिंगटोन सुनी तो मुझे एकदम ही सडनली एक बात याद आई, जो चित्र मैंने इसमें अपने पीपीटी में भी दर्शाया है कि ये जब हम बोल रहे हैं कि कल जब 15 अगस्त आजादी, जश्न आजादी हमें मनाना है और उस दौरान हमें तिरंगे के साथ सेल्फी लेके अपलोड करनी है। देश में तो इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे देश की महिलाओं को अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है, और हम किस आजादी के जश्न या आजादी की बात कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं फ्रैंकली, मैंने आज किसी को बधाई दी भी नहीं, ना मैंने बधाई ली, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं को पैरों तले रौंदा जा रहा है, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो क्या सच में आज हम 76 ईयर जश्न आजादी मनाने की स्थिति में है क्या? क्योंकि जब हम इस देश की बात करते हैं तो आधी आबादी महिलाओं की काउंट होती है, और उस आबादी में महिलाओं की स्थिति क्या है, और उसमें महिलाओं की अभी हिस्सेदारी के साथ साथ उनका अस्तित्व की क्या लड़ाई चल रही है। तो क्या सच में हम जश्न आजादी मनाने की स्थिति में भी है? और हम ये मतलब मुझे सच में शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या ही इस पर बोलूं। तो इसलिए मैंने ये एक चित्र लिया था कि सारी जगह पे चल रहा है कि हम सेल्फी अपलोड करें, लेकिन ये अपने आप में दिखा रहा है। दूसरा है, थोड़ा सा मैंने डेटा कलेक्ट किया है जो अभी का है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की है, जो अभी की रिपोर्ट है, पिछले 5 साल का जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो पिछले 5 साल में 1.5 लाख महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। अब हम बात कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, और जो हमारा परिप्रेक्ष्य है 60% ग्रामीण और 40% रेशो हमारा अराउंड शहरीकरण होता है, और ज्यादातर की इस तरीके की घटनाएं ग्रामीण एरिया में ज्यादा होती हैं, जहाँ पे एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो परिवार वाले कोर्ट कचहरी के, समाज के डर की वजह से बहुत सारे इशू, तो वो घर की दहलीज पार नहीं करते हैं, वो 4 दीवारी में ही उसको खत्म करना चाहते हैं। तो हम सोचे कि जब अगर पिछले 5 साल में 1.5 लाख महिलाओं बच्चों के साथ इस तरीके की घटना, ये ऑन रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, और अगर हम देखें कि भाई रजिस्टर्ड हुई नहीं जो एप्लीकेशन, तो उसका आंकड़ा कितना जा सकता है। फिर मेरा प्रश्न वही घूम फिर के आएगा, क्या सच में हम आज 15 अगस्त जश्न आजादी मनाने के लिए तैयार है क्या? फिर उसमें से जो प्रदेश सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए हैं उसकी स्थिति भी सामने थी। राजस्थान का क्या आंकड़ा आ रहा है, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आसाम, और भी देश हैं। मैंने अभी जो लेटेस्ट में जो टॉप पर चल रहे हैं उसका थोड़ा सा आंकड़ा उठाया है, और बाकी की रिपोर्ट काफी जगह है भी है। तो क्या हम इस आंकड़े को देखते हुए, क्या महिलाएं उस आजादी के अंदर शामिल है क्या आज जो हम जश्न मनाने जा रहे हैं? इसके लिए मैंने कुछ मतलब जो अभी इस 1.5 माह के अंदर जो सेंसिटिव मुद्दे हुए हैं, वैसे अभी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सभी जगह ये मतलब न्यूज चलती है, सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह। लेकिन जब इस तरीके के इंसिडेंट देखते हैं कि एक बच्ची को, 6 साल की बच्ची जो छात्रावास में पढ़ती है, वहां पे अगर उसके साथ रेप होता है, एक बच्ची जिसके पेट में दर्द होता है वो डॉक्टर के पास जाती है, वहां डॉक्टर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ये यूपी का केस है। और जो 6 साल की बच्ची का मैं बता रही हूँ, जो एक आवासीय फोटो केबिन का जो केस है वो छत्तीसगढ़ का है। और कुछ राजस्थान के केस है जो अभी सडनली हुए हैं। अगर एक बच्ची खेत में बकरियां चराने जाती है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, फिर उसको जलती हुई कोयले की भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो उनकी पहचान ना कर सके किसी के सामने। और वहीं 12 वर्ष की एक बच्ची को, जो सवाई माधोपुर का केस है, वहां पे टीचर द्वारा बच्ची का रेप करके कुएं में डाल देना। मैं ये केस इसलिए बता रही हूँ कि ये जगह देखिए कौन सी जगह है जो हम अपने देश की सबसे पवित्र जगह मानते हैं। ये छात्रावास वो मंदिर है जहाँ बच्चे की एक सेकंड, कहते हैं ना, प्रथम माता पिता गुरु होते हैं और सेकंड उसका गुरु अध्यापक, और वो जो परिप्रेक्ष्य होता है विद्यालय, वो होता है वहां पे। तीसरा, जहाँ डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं, वहां पे बच्ची के साथ
ये हरकत की गई है। JNU का भी सडनली 17-18 जुलाई का ही केस है, जहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर 17 साल की बच्ची का, मतलब JNU जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज, तो जब ये इतने पवित्र स्थान ही अब नहीं बचे, तो हम अनुमानित लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर जो खेत खलियान गांव ग्रामीण का परिप्रेक्ष्य है, वहां पे हमारी बहन बेटियां किस तरीके से सुरक्षित हो रही होगी। तो ये जब मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे कई बार ये अनुभव होता है कि जब मैं रोटी बनाते टाइम एक अंगुली जलती है ना, तो बहुत तिलमिला जाती हूँ। एक बच्ची को, मतलब वो उनकी पहचान ना कर पाए, उस वजह से उसको रेप करके और आपको वो जलती हुई कोयले की भट्टी में डाल दो, ताकि वो आप लोगों की शिकायत किसी के साथ ना कर सके। तो ये हमारा देश की सोच जा रहा है। फिर हम बात करते हैं कि महिलाएं आगे नहीं आ रही है। महिलाएं जब तक आगे नहीं आएगी तो ये सारी चीजें सुधरेगी नहीं, ये बदलाव आएगा नहीं। मैं थोड़े से कुछ केस है, जैसे कि अभी हमारी महिला पहलवानों ने जिस तरीके से उनके साथ यौन उत्पीड़न वाली घटना घटित हुई, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में थे, उन्होंने उठाई, लेकिन उनके साथ क्या न्याय हो पाया था? कितना उनको जलील किया गया था, किस तरीके से उनके आत्मसम्मान को, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया था। तो जब शहर की जो लड़कियां थोड़ा बहुत जो हिम्मत कर पाती हैं, वो वहां तक अगर अप्रोच करती हैं, उनके साथ इस तरीके से होता है, तो हम जब ग्रामीण एरिया की जब बात करते हैं, जब बच्चों के साथ होती है, महिलाओं के साथ होती है, और उनका एक जो घर की दहलीज पार करके थाने तक आने का जो सफर होता है ना, जो हम कह सकते हैं मुश्किल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन उस सफर में भी उस महिला का, उस लड़की का चरित्र आकलन किया जाता है, और थानेदार या जो भी उस वो किस तरीके से बात करते हैं लैंग्वेज में। तो ये जो पितृ सत्ता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हमें महिलाओं के उनके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो पितृ सत्ता हमारे ऊपर हावी हो रखी है, क्योंकि उनको इस तरीके के मुद्दे के ऊपर सेंसिटिव, जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर सेंसिटिव होने की जरूरत है, ना कि महिलाओं को कि वो आगे आके बोले। अरे वो खुद ही आ जाएगी, लेकिन जब तक सेंसिटिव नहीं होंगे ऐसे मुद्दों पर, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो इस तरीके से है। फिर दूसरा, मैं जैसे कि अभी काफी जगहों पर ऐसे हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब पर है हमारे, जैसे कि कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के लिए जो एक कानून बना हुआ है 2013 का, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह लागू होना चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी है या कहीं पे भी, ताकि बच्चे अपनी बात तो रखे, कहीं उनके सामने स्कोप तो हो। जिला लेवल की कमेटी होती है, वो भी एक दायरे में बंधी हुई होती है, अगर वो जिले के बाहर है तो वो केस जरूर ले लेंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होंगे। फिर जो अभी मैं परिप्रेक्ष्य एक नया देख रही हूँ, मतलब ये हो रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं। हम ये नहीं देख पा रहे हैं जो घटना घटित हुई हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटी के साथ, बच्ची के साथ, ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेहतर, उस पे ना जाके एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना। इससे कैसे महिलाओं की जो सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्राफ बलात्कार के, रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे कम होगा? महिलाओं से जुड़े केस इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, और महिलाओं से जुड़ी जो कमेटियां होती है, महिला आयोग होता है, या मंत्री पद पर जो बैठी महिलाएं हैं, वो तक अपना बयान नहीं देती हैं। एक एक होता है ना, मतलब हम्बली, मतलब अपनी तरफ से एक मतलब मुझे दुख हुआ, इस तरीके की घटना मेरे आसपास व्यतीत हुई है, ये तक 2 लाइनें नहीं दी जाती है। क्या मतलब हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारा जो आसपास का परिप्रेक्ष्य है, वो इतना मजबूत हो गया है कि हमें इन चीजों को देखने के लिए बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। हम बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं कि पहले हमारे लिए हमारी देश की बेटी या हमारी वो बच्ची है, कि हमारी वो पार्टी है, या हम जिस पद पर ओहदे पर बैठे हैं वो है। कई लोग मजाक में भी बोल देते हैं, मजाक मजाक में मैं सुनती भी हूँ, ये तो 50% आरक्षण, नहीं सॉरी, ये आरक्षण की वजह से महिलाएं आ गई है, वरना इनको काम कहाँ आता है। कई जगह पे महिलाओं को आरक्षण की वजह से लेके भी आ गए हैं, लेकिन उनको काम भी नहीं करने दिया जाता, उनको प्रूव भी नहीं किया जाता है। तो मुझे ओवरऑल यही कहना है, जैसे मैंने अपना एक लास्ट में एक सेंटेंस भी डाला है, कि देश की आधी आबादी कहने वाली महिला आज आजाद है क्या, जो हम इस तरीके का आजादी का दिवस मना पाए। और मुझे सच में आज मैं कल रात से भी नहीं सो पाई थी, इस तरीके का जो माहौल आसपास में क्रिएट हुआ जा रहा था,
मणिपुर की घटना जो हुई जा रही थी देश के अंदर, वो तो इस तरीके का था, मतलब खुद को फील हो रहा था कि कोई कोई चील कौवा है जो मुझे नोचा जा रहा है। मतलब जो वीडियो देखा वो ऐसा लग रहा था मुझे नोच रहा है। तो ऐसे में आज कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? जिस आजादी का जश्न मनाया जा रहा है उसमें महिला शामिल ही नहीं है देश के अंदर, तो फिर मुझे लग रहा है कि ये बेकार है। ये फिर हम एक मतलब कहते हैं ना, एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक है, आसपास का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हम आश्वासन दे रहे हैं सब ओके है, अच्छे से चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूंगी। कुछ चीजें अगर जैसे साथी कहे कि भाई किस तरीके से क्या था, तो मैंने कुछ कहीं मतलब सब जगह की न्यूज भी कनेक्ट की है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत मैं महसूस भी करती हूँ और मुझे बहुत दर्द भी होता है, और इस दर्द को महसूस मतलब बयां करने के लिए मुझे आप लोगों ने मौका भी दिया। मैं इंडियन ग्रीन पार्टी को धन्यवाद बोलूंगी, और आगे भी कभी मेरे लिए जैसा भी होगा मैं साथी के साथ जुड़ी रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पे बात करने के लिए। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी सुरेश जी, सुरेश नौटियाल, जो कि हमारे इंडिया ग्रीन्स पार्टी के फाउंडर है, वो कुछ शब्द कहे आज के ये इंडिपेंडेंस डे पे। नमस्ते। हेलो। जी सुरेश जी। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, और हमारी जो वक्ता हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। और आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। लोकतंत्र भी हम उस तरह का नहीं बना पाए जिसकी हमें जरूरत थी। हमारा लोकतंत्र अधूरा है। इसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो हमसे कभी राय लेने नहीं आते। हमारे पास राइट टू रिकॉल भी नहीं है अगर वो अच्छे प्रतिनिधि साबित नहीं होते हैं। तो इंडिया ग्रीन्स पार्टी की कोशिश तो यही है कि देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। और ये हमने अपनी पार्टी के भीतर किया है। हमने विमेंस नेटवर्क अपनी पार्टी के भीतर बनाया है, और पार्टी में जो पद दिए जाते हैं उसमें महिला और बाकी जेंडर्स का अनुपात देखा जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी के ही तहत हम लोग देश के विभिन्न समाजों, समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं, और ये कोशिश जारी है। इसीलिए हमारी पार्टी में महिलाएं अग्रणी भूमिका में हैं, और को प्रेसिडेंट से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, सभी पदों पर हमारी पार्टी में महिलाएं हैं। हमारा मानना है कि हर पार्टी में ऐसा होना चाहिए, तभी लोकतंत्र अ, सच्चा साबित होगा। इसके अलावा पार्टी के 6 सिद्धांत हैं जो हमने बताया कि इकोलॉजिकल विजडम, सस्टेनेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस और सस्टेनेबिलिटी। तो ये 6 सिद्धांत हैं जिन पर ग्रीन पॉलिटिक्स केंद्रित है, और हम इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में देश में समझ बहुत कम है लोगों में। हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पार्टी के सदस्यों की संख्या भी बहुत कम है, और ये नया विचार है। और पूरी दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो 50 साल पुरानी राजनीति है ग्रीन पॉलिटिक्स। भारत में तो बहुत ही नई है। भारत में तो इस पॉलिटिक्स को एक तरह से हम ही लोग लेकर आए हैं, और देखना है कि किस तरह से हम लोगों को जोड़ पाते हैं, किस तरह से हम उन्हें बता पाते हैं कि जो जलवायु संकट है वो कितना भीषण है, और जो जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो कितना संगीन होने जा रहा है, जो जेंडर वायलेंस है वो कितना विभत्स है। ये सारी चीजें हैं। मणिपुर अभी हमारे सामने हुआ, और
जोधपुर से जो हमारी वक्ता है उन्होंने बताया भी और कहा भी कि किस तरह से जो सत्ता में लोग हैं वो इस बार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे अभी हमारा लोकतंत्र बहुत अधूरा है, अपरिपक्व है, और ये रहेगा अगर हम जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ही रहेंगे और जो अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सब चीजें रहेंगी। और दुर्भाग्य ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सत्ता वाली पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती हैं कि देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, ताकि हर बड़ी छोटी पार्टी को संसद और विधानसभा में जाने का मौका मिले। तो ये इन लोगों की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बड़ी पार्टियों की। अब ये देखिए, महिला विधेयक को वर्षों से लटका हुआ है और उसको वो पारित नहीं होने दे रहे हैं। तो ये एक मिसाल है एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग की कि किस तरह से ये बड़ी पार्टियां जनता के विरुद्ध हैं, महिलाओं के विरुद्ध हैं। तो आप सभी लोग समझदार हैं, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। और तीनों वक्ताओं को मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू मधुबनी। Thank you, Suresh ji. The floor is open for question and answer. अगर कोई हमारे स्पीकर्स, तीन स्पीकर्स से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। This is Anu. Would like to ask one question here. Yes, Anup ji. I joined first time and I want to understand the complete thing here. Suresh sir said this is the new things in India, right? Green Party. The ideology on the six elements. I mean, we are working on this. So I just want to know about those things. I mean, what is how it is different between other parties to this? I hope my question is clear, right? Ji, Suresh ji, Yes, would you like to? you know, we do not claim that we are very different from other parties, but of course, we are a committed party and we are a party of a pledge. And we are working on these six principles of the party. And it is not, these are not the principles of the India Greens Party only. In fact, all Green parties throughout the world subscribe to these six principles, which come from the Global Greens Charter. So we have our own vision. If you visit indiagreensparty.org, you will find our policies there. So maybe you are in a position to figure out that Green Party is different from the other parties, the parties run of the mill parties, that is the parties who claim to be the mainstream parties. So briefly, yes, we are trying to resolve all the issues through these six principles. We do not see violence in any form. We look out for gender equality and equity, and of course, social justice, and of course, participatory democracy, which we are working for, and then respect for diversity. Diversity, not only biological diversity, but of course, social and political diversity. There should be space for all political theories, political thoughts, and political ideologies, all progressive ideologies in any country. But in India, unfortunately, we are seeing a shift. More and more people are inclining towards a policy, an ideology which is not for the benefit of the people and which is not in favor of people at large. So I think right now I'm not in a position to elaborate much, but if you write to me, then maybe I can answer your question.
My email address is sureshnautiyal@gmail.com. And you can also visit our party's website and see our policies and everything there. Then I think we can take this conversation to the other level, to a higher level. Thank you so much. Thank you so much, Thank Suresh. थैंक यू सुरेश। हमारे स्पीकर से अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है सुजाता जी से। सुजाता जी और हम पत्रकारों को एक ही संगठन में हैं, डीयूजे में, और बहुत सारे पत्रकार दिल्ली के मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम लोग ग्रीन पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मीडिया में ग्रीन पॉलिटिक्स को लेकर के इतना इंडिफरेंस क्यों है? सुनीता नारायण ने एक आर्टिकल लिखा था बहुत साल पहले कि इंडिया में ग्रीन पार्टी नहीं है। फिर हम उनके पास गए एक बार कि देखो हमने ग्रीन पार्टी बना दी है, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मीडिया का तो है ही नहीं, इक्का दुक्का बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमारी पार्टी के बारे में लिखा। अदरवाइज ज्यादातर लोग हमारी पार्टी के बारे में जानते ही नहीं है। तो सुनीता जी बहुत नहीं सुजाता जी बहुत सीनियर हैं और दिल्ली में उन्होंने जर्नलिज्म किया है, तो शायद वो इस बारे में कुछ कह सके और एक भरोसा पत्रकारों की ओर से दे सके कि लोग के आने वाला समय जो है वो ग्रीन पॉलिटिक्स का भी है और मीडिया का भी ध्यान उस तरफ जाएगा। तो सुजाता जी। सुजाता जी आप शायद म्यूट पे हो। कि मैंने कहा कि जाना तो चाहिए इस तरफ, लेकिन देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल उल्टी विपरीत तरीके से जा रही है, उस दिशा में जा रही है। तो ये ऑल्टरनेटिव रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि माहौल कुछ गड़बड़ है। हम सबके लिए ये माहौल काफी गड़बड़ है। फिर भी आई थिंक लोगों को कुछ समझ भी तो नहीं है। दे डोंट रियली नो व्हाट ग्रीन पॉलिटिक्स इज अबाउट। सो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, काफी चर्चा भी करवानी पड़ेगी, तब जाके शायद थोड़ा सा कुछ फर्क पड़े। सुजाता जी मैं दो तो चार 20 तो साल लोग से होंगे कोशिश जो कर ही रहा हूँ। लिखेंगे। जी 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ मैं ग्रीन पॉलिटिक्स पर, और अभी अच्छा। तक रिजल्ट 0 है। अच्छा, तो बिल्कुल जो एनवायरनमेंट पर लिखते हैं जर्नलिस्ट, वो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखा आपको? लखनऊ में एक एनवायरनमेंट पत्रकार निशांत, उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन दिल्ली में जो पत्रकार साथी हैं वो मुझे आइडेंटिफाई तो करते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स से, लेकिन कभी उन्होंने उस बारे में लिखना, शायद वो अभी अच्छा, हमें हमारी इंटीग्रेशन पार्टी और हमें सीरियसली नहीं ले पाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि अभी शुरुआती इनिशिएटिव है तो, दे क्योंकि आप चले बहरहाल काफी देखते साल हैं। पुराना है ना। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू स्पीक टुडे। Thank you, Sujata ji, for accepting the invitation at such a short notice. And also, if there are any other questions for our speakers. हेलो। Yes, Arpit. हाँ, मुझे नीलफोर जी से ये जानना है कि हम मतलब हमारे भारत में बहुत एडवर्टाइज पे पैसा खर्च किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस इन सब चीजों पर। फिर भी अगर जैसे मणिपुर में हुआ या राजस्थान की घटना देखने को मिली या उत्तराखंड में हुआ, तो ये गैप कहाँ रहता है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मॉरल एजुकेशन की कमी है? क्या वो इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्टीजमेंट जो है जी। मुझे नहीं लगता है वो रूरल एरियाज तक पहुंचती है। अगर हम मणिपुर की ही बात कर ले तो वो पूरे इंडिया को मुझे लगता है 1 महीने के बाद पता चला, जबकि एक एपिसोड और इतना भयानक
एपिसोड जो फीमेल्स के साथ हुआ था, किसी ने मीडिया पर उसकी बात नहीं की। वो लोग जिन्होंने ये महसूस किया था कि उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है, तो आप देख लीजिए हमारा देश कितना पीछे है इन चीजों में, कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हमें 1 महीने के बाद पता चलता है। ऐसे ही हादसे कितने ही होते होंगे दिन में, जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलते हैं। शायद अगर वो वीडियो वायरल नहीं हो जाता, तो न तो आपको ना हमें किसी को मालूम होता है इन चीजों के बारे में। इससे भयानक क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है अभी भी मीडिया और लोगों के बीच में, जो इन चीजों को उजागर नहीं कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया है, चाहे वो ऑडियो, किसी भी किस्म का मीडिया है, जो हम फोर्थ पिलर जो होता है एक डेमोक्रेसी का मानते हैं, उसको ही वही कहीं सोया हुआ है। तो वो लोग जो इस वक्त मीडिया में भी काम कर रहे हैं, खसूसन मैं टीवी की बात करती हूँ क्योंकि हर एक घर में न्यूज पहुंच जाती है। अब हमारे मोबाइल हर एक, वो तो कैमरा भी है हमारे लिए बहुत बड़ा मीडिया भी है। तो उस प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी न्यूज़ें अगर नहीं आएंगी तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हम अभी भी बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, जब तक वो आवाज पूरे देश तक नहीं पहुंचेगी कि हमारी बेटी के लिए क्या हो रहा है। एक तो ये एडवर्टीजमेंट आप बोल रही हैं, ये सेंट्रल लेवल पर ये चीजें इन पर ये खर्च करते हैं, लेकिन जहां रूलर की बात आती है, रूलर में अभी भी नहीं पता कि फीमेल्स के राइट क्या है, और उनको आवाज उठानी है तो कहाँ उठानी है। और अगर उनमें से इक्का दुक्का कोई पुलिस स्टेशन तक, कोई किसी इदारे तक पहुंच जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो डिस्करेज हो जाती है वहां पर। जीरो टॉलरेंस को लेकर बहुत बोला जाता है, या जीरो एफआईआर के बारे में बहुत बोला जाता है, लेकिन एक सिंपल एफआईआर करने के लिए एक औरत को दर बदर घूमना पड़ता है, और वही लोग उसे कहते हैं कि छोड़ो, ये तो एक रूटीन मैटर है, तो आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए। तो वो उस औरत के साथ होता है जो फोर फ्रंट पर आती है। मुझे लगता है 70% जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर पैसा आ रहा है, वो खाली एडवर्टीजमेंट पर खर्च होता है, और 30% ही डाउन द लाइन फीमेल्स तक उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए खर्च हो जाता है। तो जब तक वो चीजें हम इन चीजों पर, खासकर मीडिया हमारी ये आवाज नहीं उठाएगा, मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रगल है बहुत ही वो आप समझ लीजिए कि बहुत दूर है अभी, जहाँ हमारी डेस्टिनेशन जो है बहुत दूर है। क्योंकि मीडिया को हमारी आवाज उठानी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या हुआ है। जब हम ऐसी चीजों को उजागर नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश कैसे जागेगा? देश को जगाना है, और वो यही मीडिया है जिसको जगा सकता है। और दूसरी अहम बात, वो लोग हु आर एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ की औरतों को भी वही हकूक है जो उसको जो कि मेल काउंटर पार्ट को है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक वो चीजें नहीं हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये लड़ाई जो है वो खत्म होने का कहीं नाम ले रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, then I would like to request our co-president Harpreet Kaur to conclude today's webinar with a thank you note. थैंक यू सो मच मधुवंती जी, थैंक्स अ लॉट। मैं एक बार फिर से इंडिया ग्रीन्स पार्टी, विमेन नेटवर्क एंड पर्सनली अपनी तरफ से आप सभी को 77 इंडिपेंडेंस डे की बधाई देती हूँ। और हमारे आईजीपी के साथी जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने बहुत ही पेशेंस से हमारे सभी स्पीकर्स को सुना और उनसे क्वेश्चंस आंसर भी किए। सो थैंक यू सो मच। और खास तौर पर हमारे तीनों स्पीकर्स, नीलोफर जी, सुजाता जी एंड ललिता जी, जो अलग अलग फील्ड से हैं, उनको भी थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे इस वेबिनार को एक जगह पर लेके गए और बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां और बहुत सेंसिटिव इशू पर उन्होंने बात करी। सो थैंक यू ऑल स्पीकर्स। इसके साथ ही विमेन नेटवर्क की कन्वीनर मिस मधुबंती सेन जी को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करा। इसके पीछे बहुत मेहनत रही है। सो थैंक यू मधुबंती, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
Thank you very much. Thank you all. And before closing the webinar, I would just request our co-president, Rajendra Mins ji, to say a few words before we conclude this webinar. Rajendra ji, क्या आप लाइन पे हो? जी मैं आप सभी को सुन पा रहा हूँ। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी तीनों वक्ताओं ने आज के विषय पर बहुत सारे बातों को रखा और वर्तमान समय में जो भारत की आधी आबादी के ऊपर जो चल रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात को मुखरता से रखी है। तो यह हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहा जाए कि हमने इस तरह के आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वेबिनार कर पाए। तो उनके मेरा कोटि सा धन्यवाद। और आप सभी हमारे साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस प्रोग्राम को बहुमूल्य समय चूंकि आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को अगेन बधाइयां देता हूं और आप सभी को पुनः जय हिंद और जोहार। Thank you, Rajendra ji. Thank you, everyone. Have a good evening and take care. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, all. Thank you.